Today I am going to teach us class 10 geography part in social science lesson 2nd forest and wildlife resources. In previous video part 1st I will talk flora and fauna and ecosystem. So today let's point India's rich flora and assessed. The flora distribution in India, India's rich fauna assessed और preservation of wildlife. इंडिया रिच फ्लोरा assessed, इंडिया में या भारत में बहुत सारे ऐसे फ्लोरास हैं, उनकी वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा है. इंडिया possesses about 47,000 different species of plants. About 5,000 of them are found exclusively in India. 47,000 के लगभग जो है प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हमारे देश में पाए जाते हैं. 5,000 के लगभग जो है वह फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इंडिया और 5,000 के लगभग जो है वह हमारे भारत में. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स वेरी मच ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल्स. प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है वह हमारे किस पर डिपेंड करती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस पर और सॉइल पर. द लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा डिपेंड्स ऑन द वेराइटी लैंड्स, लैंडफॉर्म्स, terrain, soils, range of daily and annual temperature and varying amount of rain. और भारत में क्योंकि डिफरेंट सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन एंड एटमल सीजन, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे या प्लांट जो है वह उस सीजन के अनुसार अकॉर्डिंग जो है ग्रो करते हैं. इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री हैज़ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ सॉइल. यहाँ पर सॉइल के भी टाइप्स या वेराइटी जो है बहुत सारे हैं, सच एज लैटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, desert soil. So India also possesses many types of climate. There are certain regions which have equal and moderate climate. Certain areas have extreme weather in winter and summer. So rainfall, certain areas get moderate rainfall while certain regions receive low or scanty rainfall. कहीं कम बारिश होती है, कहीं ज़्यादा होती है. The range of daily and annual temperature in India also varies from regions to region. These factors result in various types of flora in India, such as different types of forests, grasses, shrubs, etc. India is rich in flowering and non-flowering plants. Flora in India ranges from the one found in the tropical zones to that of the Arctic zones. Next point, the forest distribution in India. भारत में विभिन्न तरह के जंगल पाए जाते हैं. Forests are very unevenly distribution in India. Some areas like Haryana, 3.8% of their area, like Andaman and Nicobar Island, where the forest cover ranges between 86.9%. Haryana, Punjab, Gujarat, Rajasthan, Delhi and Jammu and Kashmir have less than 10% of their areas under forest cover. Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Assam, Nagaland, Meghalaya have more than 60% areas covered with forests. At present, about 23.3% areas of India is under forest. There are, as according to National Forest Policy, it should be about 33%. Next point, India's rich fauna assessed. India's rich fauna assessed. भारत में किस तरीके के फाना जो है कैसे किस टाइप के पाए जाते हैं. तो नॉर्मली इंटरनेशनल यूनियन of conservation of nature and natural resources report classify fauna as follows. Normal species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, alpine and rivers. यानी कि जो नॉर्मली कहीं न कहीं वो पाए जाते हैं, देखा जाता है, तो कैटल है और सैल है, पाइन है, तो ये सब जानवर जो है हम लोग अगर देखेंगे तो नॉर्मली कहीं भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं. इंडेंजर्ड स्पेसीज यानी कि जिसका अस्तित्व खतरे में,
इंडेंजर्ड मीन्स जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं या संकटग्रस्त हैं या जिन जानवरों का अस्तित्व खतरे में है उसके लिए कहा गया। These are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult or if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. The examples of such species are black bull, crocodile, Indian wild ass, Indian lion और संघई। जितने भी ये सब एनिमल्स हैं सब के जो है अब एग्जिस्ट हो रहे हैं, यानी कि वो ख़त्म होने की कगार पर है। जिनका जीवन जो है वो संकट में पड़ा हुआ है और संकट खतरे के चलते जो है ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वल्नरेबल स्पेसीज। These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. The example of such is the blue seal, Asiatic elephant और gangetic dolphin। यानी कि इन लोगों के भी जीवन के अस्तित्व को खतरा है क्योंकि ये लोग भी इन्हीं संकटग्रस्त परिस्थितियों में से, यानी कि ऐसे ही ये लोग की चपेट में आ रहे हैं जिसमें कि संकट इनके जीवन को भी छू रहा है, यानी कि संकट की स्थिति से ये भी गुजर रहे हैं। रेयर स्पेसीज यानी कि कहीं न कहीं, यानी कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई, ऐसे जानवर हैं जहाँ जिनको कि हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, यानी कि इनकी स्थिति भी खत्म होने, उनका ये स्टेटस खत्म होने जा रहा है। स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. इनकी स्मॉल पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या जो बहुत ही कम हो गई है, में मूव टू इंटू इंडेंजर्ड, यानी कि यह भी उसी तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि इनकी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, कहीं कहीं देखने के लिए मिल रही हैं, इसलिए यह भी इंडेंजर्ड के वैरायटी में आ रहे हैं। हिमालयन ब्राउन बियर एग्जाम्पल में वाइल्ड एशियाटिक बफेलो और फ्रॉग्स। इसके बाद इंडेमिक स्पेसीज यानी स्थानिक जो एक जगह एक स्थान पर रहते हैं, देयर आर स्पेसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, जो कि कहीं एक सब पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, यूजुअली आइसोलेट बाय नेचुरल एंड ज्योग्राफिकल बैरियर्स। एक्सटेंसिव स्पेसीज, दीज आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस of known or likely areas where they may occur। अब इसके आगे प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड लाइफ में किस तरीके से लोगों का संरक्षण या रिजर्व इसको किया जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, संरक्षित करके रखा जा सकता है। जैसा सब लोग जानते हैं जू में जाते हैं जहाँ पर कि वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या रखे गए रहते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए लोग रहते हैं, तो वो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षा रखने के लिए, उनको एक तरह से सिक्योर रखने के लिए, तो ये पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बर्ड सेंचुरीज, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स, there are about 89 national parks in our country। हमारे देश में 89 नेशनल पार्क्स हैं। The most important national park are कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, दुधवा नेशनल पार्क इन यूपी, गिर लायन यानी गिर पार्क गुजरात, शिवपुरी एंड खानवा हिस्ट्री इन मध्य प्रदेश, और राजदेवारा मंकीज इन झारखंड, सिम्प्लीफाइड टाइगर्स इन उड़ीसा, अंधेरी धीर एंड दुधवा इन महाराष्ट्र। तो ये नेशनल पार्क हैं जिसमें कि जीव जंतुओं को या जानवरों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देयर आर अबाउट 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंट्री। जम्मू कश्मीर में दक्षिण में उत्तराखंड है, चंद्रप्रभा इन यूपी, महानदी। तो इस तरह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, देयर आर 30
13 बायोस्फीयर रिजर्व इन आवर कंट्री। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी ये मल्टीपर्पज होता है, बहुत उद्देश्य से ये किए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। जैसे नीलगिरी है कर्नाटका में, नंदा देवी उत्तराखंड में, रौफलेरा है मेघालय, अंडमान निकोबार आइसलैंड में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, तो ये सब बायोस्फीयर रिजर्व का। हाउ कम्युनिटीज, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हम लोग कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कैसे रिजर्व किया जा सकता है, उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। द सरकस टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, पीपल फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटीज विच वाज डूइंग विद द फॉरेस्ट रिजर्व। दूसरा पॉइंट, लाइक वाइज द रेसिडेंट of about 5 villages in Rajasthan without taking the government help are themselves declared 1,200 hectares of land in Dakar Shamuchi. By making their own rules and regulations, they do not allow hunting, thereby protecting the wildlife against outside invasion. Some people, especially the tribal people, regard many trees scared and they do not allow anybody to cut these trees. Likewise, certain animals like monkeys, langurs, blackcoot, nilgai, peacock and hell scared and are not harmed by anybody. The Chipko movement in the Himalayas, as described above, has successfully registered deforestation. The joint forest programs has involved the local communities, especially in Odisha, in the management of restoration of the garden forest. कैसे हम लोग इसको रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे जीव जंतु अपना एक घर, अपना एक हाउस बना करके रहते हैं, उसमें पत्तियों को खाते हैं, जानवरों को मार करके खाते हैं। जानवरों के हंटिंग पर रोक लगाएं गवर्नमेंट के द्वारा, बैन करना चाहिए कि जानवरों को नहीं मारा जाए। जानवरों को खाने के लिए भी कितने लोग मारते हैं, कितने लोग उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे एनिमल, जैसे एलिफेंट के टीथ को या दांत को जो है उसको काट करके, यानी कि एलिफेंट को जब मारा जाता है तभी उसके दांत को काटा जा सकता है, तो ऐसे काट करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। उसके स्किन भी बहुत सारे यूजफुल होते हैं, जिसको कि हाउस डेकोरेट किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जानवर को अपने लालच बस मार करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करते हैं। तो इस पर सरकार द्वारा बैन किया जाना चाहिए और पेड़ पौधों को बल्कि लगाना चाहिए, जिससे कि और भी देशों से, और भी कंट्री से जीव जंतु जो आते हैं, जो पशु पक्षी आते हैं, वो उस जंगल में रह सकें। इसलिए एफोरेस्टेशन करना चाहिए, यानी पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन के द्वारा लगाए जाने चाहिए और डिफोरेस्टेशन के प्रोसेस को ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि और भी एनिमल्स या जीव जंतु जो है उसमें प्रिजर्व या सुरक्षित रह सके। ओके चिल्ड्रंस, next questions are multiple choice questions answers. Read the chapter carefully and write the copy